students, in today's lecture number 2 on magnetism and matter, we shall discuss some more basic concepts of magnetism. In lecture 1, we discussed the meaning of magnet. Magnet, as I told you, it is a material which has both attractive and directive properties. Magnet is a material which has both attractive and directive properties. There are two categories of magnets, natural magnet and artificial magnets. Natural magnet has another names also. Natural magnet is also known as lodestone, leading stone, or kissing stone, or magnetite, and its composition is Fe3O4. The problem of natural magnet is that its strength is very less. We can say natural magnets are weak magnets, and also these natural magnets are not available in desired shape, so we cannot make desired machines or devices using natural magnets. Sometimes we require a very high magnitude of magnetic field to develop any device or instrument or any machine, so we have to develop an artificial magnet. So second category of magnet is artificial magnet, and it is also known as man-made magnet. It is available in desired shape or size because it is prepared by man itself. तो ये व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, therefore it can be designed in the desired shape or size, and also we can have a desired strength of this artificial magnet. We can have an artificial magnet of very high strength. We can have an artificial magnet of any lower strength. So strength is as per our requirement, and it is a strong magnet. So there are two types of magnet, natural and artificial magnet. We discussed these two types. Then we discuss the meaning of magnetism. Magnetism is the property of a magnet because of which that magnet attracts pieces of iron, steel, cobalt, nickel, etc. Is known as magnetism. So magnetism is the property of attraction of magnet, by which it can attract some pieces of iron, steel, cobalt, nickel, etc. So this property of attraction of magnet is known as magnetism. Then we discuss some basic we can say parameters or properties of a magnet. We discuss that Earth is a huge magnet. Earth itself is a magnet, or we can say Earth behaves as a magnet, and its magnetic field is directed from geographic south to geographic north. Second point, we discussed that when a bar magnet is freely suspended in air, then it aligns itself in north-south direction, in geographic north-south direction. The end of the bar magnet, which is towards the geographic north, is known as north pole of the magnet, and the end of the bar magnet, which is towards the geographic south, is known as south pole of the bar magnet. Then we discuss the like poles of the magnet repel each other, whereas unlike poles attract each other, right? And next point, we discuss that whenever we break a magnet into any desired number of pieces, जब भी हम किसी magnet को हम मनचाहे number of pieces में तोड़ते हैं, then each and every piece will have both north and south poles. Means we cannot separate poles of a magnet. हम किसी मैग्नेट के पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ को हम अलग अलग नहीं कर सकते. इट मीन्स मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. यदि हम किसी मैग्नेट को तोड़ करके उसके हजारों लाखों पीस भी कर दें, तब भी प्रत्येक पीस के पास उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा. एंड लास्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय. तो आयरन और उसके अलॉय से हम क्या बना सकते हैं? मैग्नेट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब देखिए, मैं कुछ आपको शेप्स बताना चाहूँगा. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमें अलग अलग शेप्स में मिलते हैं. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम बनाते हैं, कई बार आपने सुना होगा. देखिए, सबसे पहले तो मैं बार मैग्नेट के बारे में ही बता देता हूँ कि बार मैग्नेट किस शेप का होता है. बार मैग्नेट बार मैग्नेट की यदि मैं बात करूं तो बार मैग्नेट इस टाइप का होता है बेटा, इस टाइप का बार मैग्नेट होता है.
एक रेक्टेंगुलर रॉड जैसा होता है, रॉड होती है रेक्टेंगुलर, जिसका क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। रॉड होती है एक, ठीक है। ये क्या होती है? बार मैग्नेट। एक रॉड होता है जिसके ये नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये कहाँ होते हैं। तो इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। इस शेप का जो मैग्नेट होता है वो बार मैग्नेट कहलाता है। एक होता है बेटा हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है? इस टाइप का होता है। हॉर्स शू मैग्नेट को यदि मैं बनाऊं तो इस टाइप का होता है हॉर्स शू मैग्नेट। इस टाइप से जो मैग्नेट होता है, इस टाइप से मैग्नेट होता है, उसे हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हो जाएंगे। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ठीक है। एक होता है वॉल एंडेड मैग्नेट, यानी जिसके दोनों एंड पर बॉल्स जुड़ी हुई होती हैं, स्फेरिकल बॉल्स। तो बॉल एंडेड मैग्नेट भी हम जानते हैं, वॉल एंडेड मैग्नेट। जस्ट आप एक आइडिया ले लीजिए कि बार मैग्नेट किस शेप का होता है, हॉर्सशू मैग्नेट किस शेप का होता है, ये आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो बॉल एंडेड जो मैग्नेट होते हैं वो नॉर्मली किस शेप के होते हैं? इस टाइप की एक रॉड होती है, रॉड होती है, ठीक है। ये आधा पोर्शन हो गया है मान लीजिए इस टाइप से, और यहाँ पर एक बॉल लगी रहती है इस टाइप, इसलिए इसको बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं। दोनों साइड पर ये आप कह सकते हो कि एक डम्बेल जैसा है। किसके जैसा है? डम्बेल जैसा है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया क्या? साउथ पोल, ठीक है। ये है आपका बॉल एंडेड मैग्नेट। और एक टर्म इसमें हम बार बार बात करेंगे कि मैग्नेटिक निडल, जो हमने ऊपर बात भी की थी कल जब बैकग्राउंड की बात की थी कि जो चाइनीज एम्परर था उसने मैग्नेटिक निडल का यूज किया था। इवन डेंस फॉग में भी वो जो है पीछे से बार कर देते थे। चाइना तो पीछे से ही बार करता है हमेशा, कम्युनिस्ट विचारधारा का जो है। खैर पॉलिटिकल पॉइंट पर हमें नहीं जाना है। तो मैग्नेटिक निडल की यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक निडल जो है इस टाइप की होती है बेटा। ये मैग्नेटिक निडल होती है, इस टाइप की एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसमें एक तरफ इस टाइप से रेड कलर होता है इस पर। ये जो रेड एंड होता है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। ये एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि एक स्टैंड पर, एक स्टैंड होता है उस पर टिकी होती है, ठीक है। इस टाइप से एक स्टैंड होता है और इस स्टैंड पर ये मैग्नेटिक निडल टिकी होती है। तो मैंने आपको बताया कि बार मैग्नेट कैसा होता है। बार मैग्नेट देखिए इस टाइप का होता है। हॉर्सशू मैग्नेट इस टाइप का होता है जिसको यू शेप मैग्नेट भी कह सकते हैं। बॉल एंडेड मैग्नेट इस टाइप का होता है। मैग्नेटिक निडल इस टाइप का होता है। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मैग्नेट किस शेप का होता है, किस टाइप से हम यदि बाजार में लेने जाएं तो कैसे पहचानेंगे कि बार मैग्नेट कैसा है और मैग्नेटिक निडल क्या होती है। आप जब स्कूल आएंगे तो लैब में मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर आप गूगल करके देख भी सकते हैं कि मैग्नेटिक निडल कैसी होती है। तो गूगल पर आप देख पाएंगे, ठीक है। बार मैग्नेट भी देख पाएंगे, हॉर्सशू मैग्नेट भी देख पाएंगे और ये वॉल एंडेड मैग्नेट भी देख पाएंगे। तो मैंने आपसे 4 बातें अभी तक की हैं। बार मैग्नेट ये देखिए, ये इस टाइप का ये जो मैग्नेट होता है रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, रेक्टेंगुलर जो रॉड होती है, रेक्टेंगुलर रॉड को हम बार मैग्नेट कहते हैं। बार मतलब छड़ होती है, छड़, बार मतलब छड़। तो छड़ के जैसे आकार का होता है, रॉड के जैसे आकार का होता है, उसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, ये तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर भी हो सकता है बेटा, ठीक है। क्लियर। और एक दूसरा मैंने आपको बताया हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट जो है ये हॉर्स के शू के शेप का होता है। किसके शेप का होता है? हॉर्स के शू के शेप का होता है। हॉर्स शू शेप का होता है, इसलिए हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तीसरी मैंने आपसे बताई बॉल एंडेड मैग्नेट। और ये बॉल एंडेड मैग्नेट क्या होता है? थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन टू स्फेरिकल बॉल्स। ये थिन रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ये थिन रॉड होती है। ये क्या होती है? ध्यान रखना है आपको, ये थिन रॉड होती है। ये आपकी थिन रॉड है बेटा, थिन रॉड, ठीक है, थिन रॉड।
या थिन बार कह सकते हो, रॉड को बार भी कहते हो आप, ठीक है, ठीक है। थिन रॉड होती है या बार होती है जो कि किस क्रॉस सेक्शन की होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, और इसके दोनों एंड्स पर स्फेरिकल बॉल्स लगी रहती हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, ये बार मैग्नेट, इसे हम आगे चल के मैग्नेटिक डाइपोल भी नाम देंगे बेटा। बार मैग्नेट को आगे हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। आगे समझ में आएगा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल क्यों कहलाता है। डाई डाई देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। डाई का मतलब क्या होता है, टू, और पोल मतलब पोल, जिसके दो पोल होते हैं, एक तो देखिए नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो ये डाइपोल बना या नहीं बना, ठीक है। जैसे हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे थे, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। वैसे ही ये जो बार मैग्नेट है ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। क्यों कहलाता है ये डाइपोल? क्योंकि इसके दो पोल्स हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ध्यान रखना, जो बार मैग्नेट होता है उसके एंड्स की स्ट्रेंथ, पोल पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बार मैग्नेट के, ध्यान रखना इस बात को। पोल्स पर बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यदि इस बार मैग्नेट को आप किसी पिंस के ढेर में रखोगे, आयरन पिंस के ढेर में रखोगे, लोहे की पिंस के ढेर में रखोगे, तो जो लोहे की पिंस हैं ज्यादा कहाँ चिपक जाएंगी, ज्यादा कहाँ क्लिंग होंगी, नॉर्थ और साउथ पोल पर होंगी। 10th क्लास में भी मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट, जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई ये 4 टाइप के जो मैग्नेट्स की मैंने बात की, ठीक है। और भी बहुत सारे मैग्नेट होते हैं, लेकिन जनरली हम जिन मैग्नेट्स की इस चैप्टर में बात करेंगे मैंने उन्हीं को आपको बताया है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं इसमें। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यूज होंगी, उन डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना उन डेफिनेशंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहली जो डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जानते हो आप। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ए स्पेस अराउंड, ये क्षेत्र है, किसके चारों तरफ का क्षेत्र है? इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र। इट इज ए स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, दोबारा लिख लो, इट्स इन्फ्लुएंस can be experienced, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें हम उसका प्रभाव जो है क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक बार मैग्नेट ही बना देता हूँ। ये बार मैग्नेट है बेटा, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मान लीजिए। तो इसके चारों तरफ का ये जो क्षेत्र आएगा बेटा, ये जो चारों तरफ का क्षेत्र है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, फोर्स नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस मैग्नेट का क्षेत्र होता है, इस मैग्नेट का प्रभाव होता है इस क्षेत्र में। मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट तो आप जानते होंगे, बस ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? टेस्ला। और जिसे हम किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट भी होती है, गॉस होती है वो, ठीक है। चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप जानते ही होंगे, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं चलो, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम या तो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो कर देते हैं, इस तरीके से शो कर देते हैं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। या फिर हम इस तरीके से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो, क्रॉस से भी मैंने बताया था, क्रॉस से कब रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जब इनटू द पेज हो। ठीक है, क्रॉस से, इन क्रॉस एज को बराबर डिस्टेंस पर रख दो तो ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द पेज। ठीक है, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ द पेज होता है। ये मैंने आपको बताया था, सब रिवाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि फिर ये चैप्टर हमें अच्छे से समझना है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तो ये आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? इट इज ए फील्ड or we can say space in which magnetic field has same magnitude as well as same direction। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म लिख लेता हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड may be defined as a field which has same magnitude and same direction as well at each and every point of the given field। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड may be defined as a field which has same magnitude and same direction as well at each and every point of the given field। यानी देखिए, जैसे इस डायग्राम में इस जगह जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर ही है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यानी इस फील्ड के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ऐसे ही इसमें भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे ही इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये क्रॉस और डॉट, और ये जो फील्ड लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। यदि ये पैरेलल नहीं होती, जिगजैग होती है, इधर उधर पैरेलल नहीं होती, तब हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है और डायरेक्शन भी अलग अलग होती है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह पर क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक होता है मैग्नेटिक पोल्स। क्या होता है? मैग्नेटिक पोल्स। तो उसकी बात कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट में लिख लेता हूं, मैग्नेटिक पोल्स। अभी मैंने बार मैग्नेट के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर जो मैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, यानी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की उस जगह ज्यादा होती है। जैसे एक बार मैग्नेट में बनाता हूँ, इससे मैग्नेटिक पोल को समझने के लिए। ये बार मैग्नेट है बेटा। क्या है ये? बार मैग्नेट। बार, ये पेंसिल भी, बार मैग्नेट है। ठीक है, और बार मैग्नेट का ये मान लेता हूँ, ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ठीक है, इसको मैं साउथ पोल मान लेता हूँ और इसको मैं नॉर्थ पोल मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये पोल्स कहलाते हैं, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। तो पोल वो जगह है जब इस बार मैग्नेट को, मैंने अभी बताया, जब इसको आप आयरन पिंस के गुच्छे जगह पर रखोगे, आयरन पिंस के ढेर में रखोगे, तो जो पिंस हैं बेटा, इस तरीके की जो पिंस होती हैं, वो पिंस कहाँ पर ज्यादा इकट्ठी होंगी? इन एंड्स पर ज्यादा इकट्ठी होंगी।
किस एंड पर, ये पोल्स पर ज़्यादा इकट्ठी होंगी। यहाँ पर 1 2 आएंगी और जो पोल्स होते हैं ना वहाँ पर पिन्स का संख्या जो है ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है इसकी अट्रैक्टिव पावर कहाँ ज़्यादा होती है, पोल्स पर ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम में यदि दिखाऊँ आपको तो आप देखिए ये एग्जैक्ट डायग्राम देख सकते हो। ये दिखाई दे रहा होगा आपको एग्जैक्ट डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखना जरा, ये क्या है, ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो आप देखिए जरा, इस पोल पर, नॉर्थ पोल पर देखो ढेर ज़्यादा है पिंस का, है या नहीं, और बीच में कम है, और फिर यहाँ एंड पर ज़्यादा है। यानी दोनों एंड्स जिनको हम पोल्स कहते हैं मैग्नेट के, उन दोनों पोल्स पर जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा आयरन पिन इधर चिपक गई। ठीक है, आयरन पिन ज़्यादा क्यों यहाँ पर क्लिंग हो गई, चिपक गई, क्योंकि यहाँ पर इसकी अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है। ऐसे ही साउथ पोल पर भी इसकी अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है, लेकिन मिडिल में कम होती है। इसका मतलब जो पोल्स हैं वो जगह है, पोल्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसका मतलब पोल्स को हम क्या कैसे डिफाइन करें, तो पोल्स मतलब होता है रीजन, सो मैग्नेटिक लिखेंगे हम इसको, मैग्नेटिक पोल्स आर द रीजन्स, वो क्षेत्र हैं मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स वो क्षेत्र है जहां पर एट विच द, हम सीधे लिख सकते हैं, द अट्रैक्टिव पावर ऑफ मैग्नेट इज हायर एज कंपेयर्ड टू अदर पोर्शन और रीजन ऑफ मैग्नेट। समझ में आ गई बात। तो मैग्नेटिक पोल्स वो रीजन है, ये इसको हम रीजन नाम दे रहे हैं इस जगह को। तो मैग्नेटिक पोल्स वो रीजन है जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है, जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है, हायर होती है, एज कंपेयर टू अदर पोर्शन और रीजन। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पोल्स कहते हैं। तो ये इसमें 2 पोल हैं, हर मैग्नेट में 2 पोल होंगे बेटा, ध्यान रखना। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इट मीन्स पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, क्या नहीं किए जा सकते, अलग अलग नहीं किए जा सकते, और सेपरेटेड को हम आइसोलेटेड भी कह सकते हैं। आइसोलेट नहीं किए जा सकते पोल्स, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला टर्म डिफाइन करते हैं। ये तीनों बात समझ में आ गई। क्या, पहला मैग्नेटिक फील्ड बताया मैंने आपको, दूसरा क्या बताया बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा क्या बताया, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, अब एक और दो और डेफिनेशन है जो जिनका यूज भी हम करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो डेफिनेशन है वो है नंबर 4, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है ये जान लेते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस को जानने के लिए दोबारा से हम क्या बना लेते हैं, एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, बार मैग्नेट हम इसलिए ले रहे हैं कि हम इस चैप्टर में बार मैग्नेट की बात करने वाले हैं। और ये पोल मैंने माना था, इस जगह क्या था बेटा, इस जगह था आपका साउथ पोल। ठीक है, और इस जगह क्या था, नॉर्थ पोल था। ठीक है, ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था। तो साउथ और नॉर्थ पोल से होते हुए यदि मैं इस टाइप से एक एक्सिस ड्रॉ करूं, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो कहां से पास हो रही है, पोल्स से जा रही है, नॉर्थ और साउथ पोल से जा रही है। सो ए लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज नोन एज व्हाट, इसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक एक्सिस। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आ गया, सिंपल सी बात हो गई। इसका एक्सिस होगा ना ये मैग्नेट का, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज ए लाइन पासिंग
थ्रू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ए मैग्नेट. इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट. कौन? मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? लाइन है जो कि कहां से पास होती है? मैग्नेट के पोल से पास होती है. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है. और जो नेक्स्ट टर्म आपको ध्यान रखनी है, एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर. क्या यूज होगा आगे चल के शब्द? मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है, इसके बारे में भी पता हो तो मैग्नेटिक इक्वेटर को भी हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं बेटा. जैसे ये इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊं, ये है मेरा बार मैग्नेट और ये कहा मैंने साउथ पोल और ये कहा मैंने नॉर्थ पोल, और ये लाइन जो मैं पास कर रहा हूं इसके पोल से, ये कहलाएगी क्या बेटा? ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी. और इसके परपेंडिकुलर यदि मैं ये लाइन जो कि सेंटर ऑफ मैग्नेट से पास होता है, ये मैग्नेट का सेंटर हो गया, तो ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ मैग्नेट से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर. इसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर भी क्या है? इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. सेंटर ऑफ किसके सेंटर से? सेंटर ऑफ द मैग्नेट. थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड इज परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस. समझ गए? मैग्नेटिक इक्वेटर समझ में आ गया. मैग्नेटिक इक्वेटर वो लाइन है जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है. ये मैग्नेटिक एक्सिस है आपका, ये वाला जो एक्सिस है जो पोल से पास हो रहा है, ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस है आपकी. इसको तो आप कह रहे हो मैग्नेटिक एक्सिस. क्या कह रहे हो इसको आप? मैग्नेटिक एक्सिस. ठीक है, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस हो गया. तो ए लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ये सेंटर ऑफ मैग्नेट हो गया. ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मैग्नेट. ये सेंटर, CENTRE, सेंटर. एक मिनट बेटा, इस पेंसिल से सही लिखा नहीं जा रहा है. चल दोबारा लिख देते हैं. सेंटर, ये क्या है? ये जगह क्या है? सेंटर ऑफ मैग्नेट. तो ए लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक इक्वेटर. समझ में आ गया? सिंपल सी बात हो गई. ठीक है, अब एक और टर्म है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा. वो टर्म क्या है? मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ किसे कहेंगे? मैग्नेटिक लेंथ समझने के लिए वापस ये मैं बार मैग्नेट बना देता हूँ. ये लीजिए, ये बना दिया मैंने बार मैग्नेट. मैं मैग्नेटिक लेंथ को समझाने की बात कर रहा हूँ. ये बार मैग्नेट का हो गया साउथ पोल, ये बार मैग्नेट का हो गया नॉर्थ पोल. क्लियर? तो नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं ना बेटा मैग्नेट के, वो थोड़े से अंदर होते हैं. देखो एंड्स पर नहीं बनाया मैंने नॉर्थ पोल, एंड्स पर नहीं बनाया मैंने साउथ पोल. तो जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो इस ज्योग्राफिकल एंड से, ये हो गया ज्योग्राफिकल एंड ना, ज्योमेट्रिक एंड. क्या कहते हैं सोरा बेटा? क्या कहते हैं इसको? ज्योमेट्रिक. भाई इस ज्योमेट्री का एंड हो गया ना, इस स्ट्रक्चर का एंड हो गया, तो ये ज्योमेट्रिक एंड हो गया. ठीक है बेटा, ये ज्योमेट्रिक एंड हो गया और ये दूसरा ज्योमेट्रिक एंड हो गया. तो ज्योमेट्रिक एंड से थोड़े अंदर होते हैं कौन? नॉर्थ और साउथ पोल. ध्यान रखना बेटा, नॉर्थ को देखो थोड़ा सा मैंने अंदर बनाया, जितना अंदर नॉर्थ पोल है उतना ही अंदर इस ज्योमेट्रिक एंड से साउथ पोल होता है. तो जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, एक तो बात ध्यान रखना कि मैग्नेट के ज्योमेट्रिक एंड से थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, ये ध्यान रहेगा. और फिर ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देते हैं व्हाट, मैग्नेटिक लेंथ। उसे हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान रहेगा भाई, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और ये है ज्योमेट्रिक एंड बेटा, ये दूसरा ज्योमेट्रिक एंड हो गया, ये एक ज्योमेट्रिक एंड हो गया, ये दूसरा ज्योमेट्रिक एंड हो गया। दोनों ज्योमेट्रिक एंड किसके ज्योमेट्रिक एंड है ये बेटा, ये इस मैग्नेट के ज्योमेट्रिक एंड है। ये ज्योमेट्रिक एंड है और ये ज्योमेट्रिक एंड है। तो दोनों ज्योमेट्रिक एंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी हम कह सकते हैं इस पूरे मैग्नेट की जो लेंथ होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, हम उसे क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। इसे कहेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ तो एंड टू एंड आएगी, ज्योमेट्रिक लेंथ एंड से एंड तक है, और मैग्नेटिक लेंथ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा बेटा। तो हम लिख दें इस बात को, मैग्नेटिक लेंथ क्या हो गया, मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस, मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस है, बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए, बिटवीन द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ए मैग्नेट। किसी मैग्नेट के दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैग्नेटिक लेंथ है। और दूसरा मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिक लेंथ भी लिखा है ना बेटा, तो ज्योमेट्रिक लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ कुछ भी बोल सकते हो बेटा। ज्योमेट्रिक लेंथ भी इसको हम कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलो या ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, it is the distance, it is the distance, ये किसके बीच का डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकल लेंथ, it is the distance between two geometrical ends, between two geometrical ends of a मैग्नेट। ज्योमेट्रिकल एंड्स ऑफ ए मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, और जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्टेंस है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ध्यान रहेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेट दिखाई देने में भी लग रहा होगा ना, दिखाई भी दे रहा होगा, मैग्नेटिक लेंथ कम है और ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, मैग्नेटिक लेंथ is slightly less, slightly, ये पॉइंट बना के लिख लेना, मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिक या ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट से कम होती है। और ये रेशो भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। रिसर्च जब हुई तो रिसर्च में ये पाया कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये जो रेशो आया मैग्नेटिक और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशो, ये लगभग 0.84 आया, लगभग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 0.84 आया, ठीक है। कौन, किसका रेशो, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशो कितना आया, अप्रॉक्सीमेटली 0.84 आया, अप्रॉक्सीमेटली 0.84 आया। समझ में आ गई बात, अप्रॉक्सीमेटली कितना आया, 0.84 आया। चलिए ये बात हो गई। अब हमारा इस चैप्टर में जो मेन फोकस है ना बेटा, वो रहेगा बार मैग्नेट पर। किस पर रहेगा, बार मैग्नेट पर। अभी मैंने आपको बार मैग्नेट दिखा दिया, बार मैग्नेट दिखा दिया ना। अब बार मैग्नेट दिखा दिया और मैंने डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स भी बता दिए, ठीक है।
जैसे मैंने कौन कौन से मैग्नेट बताए थे आपको, बार मैग्नेट बताया था, हॉर्सशू मैग्नेट बताया था, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल भी बताया, और क्या बताया मैंने, वॉल एंडेड मैग्नेट बताया आपको, ठीक है, वॉल एंडेड मैग्नेट भी आपको बताया। तो मेनली अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में किसकी, बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट, जिसको और क्या नाम देते हैं हम, मैग्नेटिक डाइपोल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। बार मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, ठीक है। अब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, कि मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। सो बार मैग्नेट को डिफाइन यदि करना है तो हम कह सकते हैं कि इट इज, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाई थी आपको बार मैग्नेट की, ये देखो इस टाइप का होता है बार मैग्नेट, इस टाइप का होता है ना, रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख दें। तो इट इज जनरली a rectangular shaped, it is generally a rectangular shaped piece of a rod, ठीक है। किसी रॉड का कैसा पीस होता है, रेक्टेंगुलर शेप का पीस होता है, ठीक है ना। इट इज जनरली ए रेक्टेंगुलर शेप्ड पीस ऑफ रॉड, having north and south poles of same strength separated by a small distance, यही तो बताया था मैंने अभी आपको भाई, बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड पीस ऑफ ए रॉड। किसी रॉड से एक स्मॉल पीस कट कर लिया जाए रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, जिसमें दो पोल्स हों, एक साउथ पोल हो और एक नॉर्थ पोल हो, ठीक है, एक साउथ पोल हो और एक नॉर्थ पोल हो, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस हो, ठीक है। तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। जनरली शब्द मैंने इसलिए लिखा है बेटा कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आप इसी को ध्यान रखें, बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट की कैसे डिस्कवरी हुई थी, आपने सर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, बहुत बार सुना होगा। E=mc² की बात उन्होंने की, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दे डाले थे जिनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उनके बचपन की एक याद है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी वो लिखी हुई है कि उनके बचपन में, किसके बचपन में, जो ग्रेट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ठीक है, उनके बचपन में उनके एक रिलेटिव आए उनके घर पर, और रिलेटिव ने जो है उनको एक मैग्नेट गिफ्ट किया। समझ में आ रही है बात। सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन में उनके एक रिलेटिव ने उनको क्या गिफ्ट किया, एक मैग्नेट गिफ्ट किया। तो आइंस्टीन जो है ना, उस मैग्नेट को देख करके बड़े मतलब एक तरह से सरप्राइज्ड हो गए, फैसिनेटेड हो गए, ठीक है, और उसके साथ वो मतलब तन मन से खेलने लगे, बहुत मतलब लंबे समय तक खेलते रहे, बार बार उससे कुछ ना कुछ करते ही रहे, खेलते रहे उससे, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जब जो मैग्नेट से जब वो खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेट है वो आयरन पिंस को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, नेल्स को अपनी तरफ खींच रहा है जो दूर रखी हुई है, ठीक है। तो वो आयरन नेल्स और पिंस को ये खींच रहा है, जो कि उस मैग्नेट से ना तो किसी रस्सी से बंधी है ना ही किसी स्प्रिंग से बंधी है, उनको खींच रहा है। तो इस तरीके से फिर आइंस्टीन ने जो है इसके ऊपर अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है।
और बताया कि आइंस्टीन ने ही बताया कि जो मैग्नेट होता है ना बेटा, मैग्नेट के पोल्स पर जो है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और मिडिल में इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कम होती है। तो मिडिल में जो नेल्स हैं वो कम इकट्ठे होते हैं। तो एक छोटी सी वाकया था सर अल्बर्ट आइंस्टीन का। क्या वाकया था कि उनके बचपन में उनके रिलेटिव ने एक जो है मैग्नेट उनको गिफ्ट किया। आज कोई मैग्नेट आपको गिफ्ट करेगा तो फेंक दोगे कि क्या गिफ्ट दिया है, मैग्नेट दिया है। लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं फेंका और वो उससे खेलने लग गए। ठीक है, आपने भी अपने बचपन में खूब खेला होगा मैग्नेट से। बुक में आपने एक मैग्नेट रखा होगा एक तरफ और फिर कई पेजेस के बाद में एक कॉइन रखा होगा, और जब मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो वो कॉइन भी आगे पीछे मूव करता है। ये भी आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, खेला होगा ये गेम भी। तो जब आइंस्टीन जब उस मैग्नेट के साथ, जो गिफ्टेड मैग्नेट था, उसके साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा, बार मैग्नेट स्पेशली उनको गिफ्ट किया गया था, तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट है वो अपने और जो है आयरन पीसेज को खींच रहा है, आयरन नेल्स को खींच रहा है ना, पिन्स को खींच रहा है। और देखा कि जो आयरन पिन और नेल्स हैं वो उसके एंड्स पर ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं, बीच में कम इकट्ठी हो रही हैं। तो ये एक छोटी सी घटना थी बार मैग्नेट से रिलेटेड, ध्यान रखना। ठीक है, अब बार मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बेटा। हालांकि उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑलरेडी हमने ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, देयर आर टू पोल्स, दो पोल्स होते हैं बार मैग्नेट में, ये देखिए। देयर आर टू पोल्स नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, एंड these two poles, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वही लिख देते हैं। These two poles are located slightly inside, or we can say inward। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, slightly inside or inward from the geometrical ends of a magnet। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जो मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल एंड से थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। ये एक बात हो गई। ठीक है, अब दूसरी जो बात है कि डिस्टेंस बिटवीन, दूसरा द डिस्टेंस, वही बात इकट्ठी करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं अब तक। द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहलाता है बेटा? वो मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। ठीक है, किसका मैग्नेटिक लेंथ? मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन, ज्योमेट्रिकल एंड का भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल एंड्स ऑफ ए मैग्नेट is known as क्या? ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ में आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, is slightly less than geometrical length। ठीक है, इनका रेशो भी आप यहाँ लिख देना। मैग्नेटिक
लेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय जियोमेट्रिकल लेंथ, इनका रेशो लगभग कितना आता है 0.84 आता है। ठीक है, ये बात भी आप लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए वो क्या है, लाइक यानी सेम, पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, वेयर एज अनलाइक मतलब डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक कोई रिजिड रूप है, रूप से एक धागा लिया, धागा बांध दिया और इस धागे से एक मैग्नेट को लटका दिया। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। जब इस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के पास दूसरी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाओगे आप, ये दूसरी बार मैग्नेट है। ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाओगे तो क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। यानी जो ये ऊपर वाला मैग्नेट है ये रिपल्सन के कारण क्या जाए, रिपल्सन के कारण ऊपर की तरफ जाएगा, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा ये, और कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, रिपल्सन होगा यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर यदि मैं इसी एक्सपेरिमेंट में ये मैंने मैग्नेट बांधा और ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। ठीक है, और मैं अब क्या किया कि मान लीजिए चलो इसमें मैं नॉर्थ पोल को यहाँ ले आता हूँ, नॉर्थ पोल को इधर ले आता हूँ, ये नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट का और ये साउथ पोल। तो देखो ये पहले मैग्नेट का साउथ है, ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ है। तो जो मैग्नेट है ये वाला वो किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखिए जब नॉर्थ को पास में लाए तो रिपल्सन हो रहा था, जब नॉर्थ साउथ को पास में लाओगे, अलग अलग पोल्स को लाओगे तो अट्रैक्शन होगा। वैसे ही साउथ को पास में लाओगे तो रिपल्सन होगा। वैसे ही यदि आप नॉर्थ को साउथ के पास ले जाओगे तो अट्रैक्शन होगा। यानी लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब आगे जो बात है क्या है आगे कि whenever we suspend a magnet freely। ठीक है, 6th पॉइंट लिख लेता हूं मैं। if we suspend a magnet freely then it aligns itself in geographical north and geographical चलो इससे लिख लेते हैं, geographical साउथ डायरेक्शन। कैसे अलाइन करेगा वो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, द एंड ऑफ मैग्नेट विच इज टूवर्ड्स geographical north is known as north pole of magnet, and the end of magnet which is towards geographical south is known as south pole of magnet।
ठीक है। यदि किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, और मैग्नेट का वो है एंड जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं मैग्नेट की कि इफ बी ब्रेक ए मैग्नेट इनटू मैनी पीसेज, ठीक है, जितने हम चाहें उतने पीसेज में यदि तोड़ दें तो क्या होगा, पोल्स could not be separated, पोल सेपरेट नहीं हो सकते, और आइसोलेटेड दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है मान लीजिए। ठीक है। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैंने तोड़ दिया, ठीक है, ये तोड़ दिया, कई पीसेज में तोड़ दिया। ये पहला पीस है मान लीजिए, और ये दूसरा पीस है इसी बार मैग्नेट का, ये दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पीसेज में मैंने तोड़ दिया मैग्नेट को। तो यदि ये साउथ है तो ये नॉर्थ, ठीक है, ऐसे ही ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ। ठीक है। तो हर पीस में देखिए दो पोल हैं, यानी सभी पीसेज में दो पोल हैं। ईच एंड एवरी पीस विल हैव टू पोल्स, इट मीन्स मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं मैग्नेट की, मैग्नेट हैज मोर अट्रैक्टिव पावर एट इट्स पोल्स। ठीक है। दैट इज the magnetic strength of a magnet is greater at its poles। मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होती है, पोल्स पर ज्यादा होती है। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। और both the poles will have same strength। पोल्स पर ज्यादा होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, लेकिन दोनों पोल्स की आपस में बराबर होगी, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ आपस में बराबर होगी। मिडिल पोर्शन ऑफ द मैग्नेट has comparatively lower strength। जो इसके मिडिल पोर्शन है मैग्नेट का वो कंपैरेटिवली लोअर पोर्शन का होता है। ठीक है। क्लियर है। और ये तो बात हो गई मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जाना। उससे पहले मैंने डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई। उसके बाद में बार मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में बताया, और फिर मैंने आपको बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। यहाँ तक का आप अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है इस लेक्चर से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन है, तो you are free to ask in comment box. You may put your questions in comment box. Thank you very much.